Oh my god. Hello everyone. So welcome back to my channel and today I'm going to talk about something different जो मैंने शायद आज तक नहीं कभी बात किया होगा but something very special, very personal and this video can be a little long because बहुत थोड़ा सा मुझे minute details बताने पड़ेंगे. So yeah. So I live in Mumbai and I used to live with my parents और अभी तो मैं फुल टाइम योगा सिखाती हूँ, टैरो करती हूँ, बट इससे पहले मैं एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में काम किया करती थी और वहीं पे मैंने पार्टनरशिप लिया था. सो ये मैं आपको बात बता रही हूँ. आई थिंक दिस इज़ 2019, मिड ऑफ 2019, like in the month of June and August. I've always felt that I am a kind of a person who will always make decisions based on what my heart is saying, heart is telling me, or what I'm feeling at that point of time. I'm not a very logical person in the sense, ऐसा नहीं कि मैं लॉजिक पे नहीं ध्यान देती, बट आई एम मोर ऑफ लाइक इंट्यूटिव और इंस्टिंक्टिव पर्सन. अगर मुझे तुरंत अच्छा लगा तो आई विल से येस, मुझे नहीं अच्छा लगा तो आई विल से नो. So my work was going well, my partnership business was going well, but in the mid of 2019, I started feeling, I don't know, I started feeling very uncomfortable and like something. Okay, why my camera is doing this? So I started feeling very uncomfortable और पता नहीं क्यों मुझे एक बहुत ही डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग आ रही थी और अनईजीनेस वाली फीलिंग आ रही थी. I'm so sorry. So what I was saying is, so I was not feeling comfortable. I was getting very uneasy. Um, so I don't know. This thought came up to me. The way you should change something in your business. You should do something else because आप जो भी अभी कर रहे हो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए शायद उतना बेनिफिट नहीं देगा. So I went to my partner. मैंने उन्हें बताया कि I think we should do something else. We should change our maybe our strategies or what are we doing, a little bit of plans or something. But she wasn't comfortable with that, which is completely okay. It doesn't, हमेशा ऐसा नहीं होता कि दोनों जन same page पे रहे. So she was not okay about that, which is completely fine. But see, for me it was very easy thing, क्योंकि I was doing yoga as well at that point of time. तो मेरे लिए वो बहुत ही okay-ish thing थी. Even though like if even though my business is doing like okay, it's fine because I have another source of income and I mean it's okay because the जो मेरा पार्टनरशिप था वो काफ़ी like it was like a nominal percentage. It was just like 25. So I mean it was fine with me. अगर चीज़ें उतनी भी बहुत अच्छी नहीं वर्कआउट करती तो फिर भी like मेरे लिए जितना भी शेयर था वो मेरे लिए शायद इनफ था. बट मुझे पता नहीं क्यों मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था और मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं अपने इमोशंस को थोड़ा सप्रेस करूँ, कंट्रोल करूँ कि भाई नॉट एवरीथिंग कैन हैपन अकॉर्डिंग टू यू, राइट. सो बट मैं कितना भी खुद को समझा रही थी बट सीरियसली इट वॉज नॉट लाइक आई वॉज नॉट फीलिंग. आई वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड टू लाइक फील ओके एंड सप्रेस माई इमोशन, बट मैं वो कर ही नहीं पा रही थी. मैंने घर पे अपनी मम्मी से भी बात किया इस बारे में एंड शी वाज लाइक इट्स ओके, आई मीन यू आर गेटिंग गुड मनी आउट ऑफ इट, यू डोंट हैव टू लाइक बी सो पर्टिकुलर अबाउट दिस एंड स्टफ लाइक दैट. एंड आई वाज लाइक बट द थिंग वाज कि मुझे जो फील हो रहा था वो मुझे फील हो रहा था और मैं अपने इमोशंस को एंड आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन. जो मुझे लग रहा है वो मैं करती हूँ, वो मैं बोलती हूँ. तो सो आई अगेन मैंने कोशिश किया मेरे पार्टनर से बात करने की. आई थिंक वी शुड चेंज समथिंग बिकॉज दिस सेटअप वी आर राइट नाउ, जो भी हमारा अभी फ़िलहाल है, आई थिंक दिस विल नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग एंड वी शुड डू समथिंग अबाउट दिस. एंड मोर देन मी इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज like you are a family person and I'm मतलब I just have to take care of myself but you have to take care of your family. But she didn't listen to me. So but even I was not okay with it. So I told her ki, I think I would like to withdraw the partnership. And she was like, why? Everything is going fine. And I mean like everyone thought basically that I'm a completely jerk and stupid person
to do that because everything was going fine, and still I was like behaving like a jerk. But I just didn't feel like doing it. So what I did was I withdraw my partnership. ये हुआ अक्टूबर 2019 में कि मैंने अपना पार्टनरशिप विड्रॉ कर दिया था. उसके बाद भी आई वॉज तो जैसे ही मैंने पार्टनरशिप विड्रॉ कर दिया, मेरा माई योगा स्टार्टेड हैपनिंग फुल टाइम. आई स्टार्टेड टेकिंग मोर क्लासेस. तो मेरा योगा वॉज लाइक हैपनिंग फुल टाइम. उसके अलावा आई वॉज विथ वन मोर कंपनी फॉर लाइक जहाँ पे मैं स्कूल्स में जाती थी और सेशंस करवाती थी. सो दैट वॉज कम्प्लीट डिफरेंट. दैट वॉज नॉट योगा. इट वॉज मोर ऑफ लाइक अ फिटनेस डांस रूटीन. सो दैट आई वॉज डूइंग फॉर किड्स, जिसके फ़ोटोज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखते होंगे. So yeah, so this chapter got closed, the business chapter got closed. And उसके बाद भी आई डोंट नो वाई बट आई वॉज नॉट फीलिंग, मतलब मेरा पूरा दिन एक्चुअली बहुत ही हेक्टिक होता था बिकॉज आई यूज़ टू हैव अ लॉट ऑफ योगा क्लासेस एंड देन आई यूज़ टू गो फॉर स्कूल्स एंड एवरीथिंग. इट वॉज स्टिल अ वेरी हेक्टिक वर्क वाइज एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड, बट द थिंग वॉज कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एनर्जी जा रहा था, काफ़ी काम था, बहुत स्ट्रेस था. बट स्टिल आई वॉजंट फीलिंग गुड, यू नो. सो एज ह्यूमन्स हमको आदत होती है कि वी डोंट वांट टू पुश आवरसेल्व्स. वी वांट समथिंग टू हैपन, कोई कुछ सिचुएशन होगा तब हम स्टेप लेंगे, तब हम कुछ करेंगे. तो एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसे हुआ. आई वॉज एक्चुअली in my personal life or in my house life, things were not going good. So I was thinking to like move out of my house for a very long time, but I was just, I don't know, मैं बहुत कोशिश कर रही थी बट ऐसे कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था. मैं घर भी काफ़ी देख रही थी बट कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था. सो आई थिंक आई हैड I won't say fight, but my father said something to me, and something happened. I just got this strong emotion कि they were like, this is it, and you should not stay with people with humans who are basically not treating you right or not contributing anything in your life. And it's just like you're living with just like random people. You feel like you're living with random people. So after that particular incident, I don't know what happened to me, but I started searching house. But उसके बाद भी मुझे काफ़ी टाइम से घर नहीं मिल रहा था because it's very difficult for a single woman to get house in Mumbai. So one fine day, I was like, I just want to get out of this place and I don't want to live here. And I think ये कुछ मार्च की बात है, मार्च 2020. तो मैंने मेरे एक फ्रेंड के भाई को फ़ोन किया, हु इज़ अ ब्रोकर. सो आई कॉल्ड हिम एंड ही स्टार्टेड शोइंग मी हाउसेस. और फिर फाइनली मैंने घर सिलेक्ट किया और मैं शिफ्ट हुई 10th March 2020 को. जैसे ही मैं शिफ्ट हुई, आई वॉज ट्राइंग टू सेटल डाउन एंड एवरीथिंग. कट टू विदिन 10 to 12 days लॉकडाउन हो गया एंड एवरीथिंग वॉज शट डाउन एंड जो भी क्योस हो रहा था बाहर. बट आई थिंक 1-2 महीने के बाद, 2-3 महीनों के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि वाई आई वॉज फीलिंग दैट वे. बिकॉज पहली चीज़, अगर मैंने अपने बिजनेस से खुद को नहीं विड्रॉ किया होता तो आई वुड हैव into a lot of financial losses. And not just financial, because अगर मेरा काम भी नहीं अच्छा चलता, प्लस मैं शिफ्ट हो गई थी, मुझे सब कुछ खुद करना पड़ता था, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाना था. इसलिए आई थिंक आई वॉज फीलिंग दैट वे बिकॉज आई ऑलवेज trust my intuition, trust my process of doing things, of believing in things. So it just it was obviously उस वक्त मुझे इतना क्लिक नहीं हुआ, but I think 2-3 महीने के बाद मुझे समझ में आया कि it was such a right decision at the right time. So this was one thing, because if I would have been in that same business, I would have really hit a low because work was like completely fucked up. And when it comes to the house thing, अगर सपोज मैं लॉकडाउन में वहीं होती तो, क्योंकि हम इतने लंबे टाइम तक वो एक बंद स्पेस में होते, प्लस मैं उन लोगों के साथ होती जिनके साथ मुझे नहीं रहना, तो ये एक मेरे लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होना था. और फिर लॉकडाउन में बाहर जाके शिफ्ट होना एक बहुत ही
डिफ़िकल्ट सिचुएशन होना था, इम्पॉसिबल वाली सिचुएशन होना था. सो जैसे ही मैं सेटल हो गई, आई वॉज कम्प्लीटली ओके यू नो, मेरे नए घर में. क्योंकि मेरे योगा सेशंस चल रहे थे, वर्क वाइज एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड. एंड after reflecting on all these things, you know, 1-2 महीने के बाद I started realizing that it is important that we don't suppress our emotions and feelings. And really जो चीज़ें, जो साइंस हमको यूनिवर्स देती है, आपको खुद के अंदर से जो आपको मिलते हैं, वो आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. यू नो, इफ़ यू आर फीलिंग अनकम्फर्टेबल विद समथिंग और एनीथिंग, यू नो, दिस इज़ समथिंग व्हाट आई फील. एंड इट्स नॉट जस्ट ये मेरे को सिर्फ खुद के लिए फ़ील होता है, ये मुझे बहुत सारे लोगों के लिए फ़ील होता है. और इसीलिए मैं काफ़ी लोगों को यू नो कुछ चीज़ें बोलती हूँ कि यू नो यू शुड नॉट डू दिस और डू दैट और समथिंग लाइक दैट. सो आई वुड से you should believe if someone is saying you something genuinely. Obviously no one can force you to do something, you should always do जो आपको ठीक लगता है. But the point is, the entire ये पूरे वीडियो का मेरा यही पॉइंट है कि हम सब में वो इंट्यूशन का पावर है, हम सब में वो यू नो वो एक सेंस है कि यू नो चीज़ें कैसी आगे हो सकती है, या अच्छा बुरा, ये सब हम में सेंस है. इट्स जस्ट दैट you need to keep that unfiltered. You just have to believe in yourself, you don't have to suppress your emotions, you need to understand and work on your feelings, whatever you're feeling. And I was really happy with my decisions, you know, after reflecting on it, कि मैंने कितना I think right time पे right decision लिया of doing that. I know a lot of you won't understand what I'm saying because it's all about energies, it's all about different thing. It's not just about logic or being sensible or whatever it is. But ऐसे बहुत सारे experiences मेरे साथ होते रहते हैं which is based on intuition and energies. And so if you like this video, do tell me and let me know कैसे लगा आपको वीडियो. और मेरे पास ऐसे बहुत सारे experiences है शेयर करने के लिए. I can share like मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ. सो बट दीज टू वर रियली पावरफुल time of my life because this two incident really changed a lot of things for me. So yeah, I hope even you will work on your intuition, and even you will understand yourself and work on yourself and have faith in yourself. I'll see you soon. Please बताना वीडियो कैसे लगा. This was something very personal but I wanted to share because a lot of us are going through some or the other thing, but we don't want to address that problem of ours or address that challenge. I know this is something, ये बहुत difficult होता है कि you know अपनी comfort zone से बाहर आना, कुछ अलग करना, या maybe थोड़ा risk लेना life में. This is all is difficult. I'm not telling you to take risk in life. All I'm saying is that we as human we all are intuitive. The thing is that हम बहुत ज़्यादा खुद को अलग अलग थॉट से, अलग अलग चीज़ों से खुद को कवर करके रखते हैं. यू जस्ट हैव टू बी द ऑथेंटिक सेल्फ ऑफ योर्स एंड जस्ट सी व्हाट लाइफ इज़ ब्रिंगिंग टू यू. Oh my god, I think मैंने आपका बहुत सारा टाइम ले लिया. I'll see you soon and thank you so much for watching the video. Let me know कैसे लगा. And yeah, bye. Take care. Lots of love to you all guys.